Good morning, students. In our previous video, we had discussed about the summary of the 100 Dresses Part 1, which is written by Albasa Esther. This is the chapter 5 of our English book First Flight. In this video, I am going to introduce second part of the 100 Dresses. In the previous video, we had discussed about Wanda Petronovsky, her two classmates Peggy and Maddie, who were best friends. In that part, we had discussed Wanda Petronovsky and Peggy and Maddie. Wanda Petronovsky, who was a poor girl, who was an immigrant from the Poland. Peggy, who was a rich girl and popular girl in the school. Maddie, who herself was also a poor girl, but she was the best friend of Peggy. In that chapter, we came to know about Wanda Petronovsky, who was mentally harassed by her classmates, as all the classmates, including Maggie and Paddy, used to make fun of her, used to bully her, just because of she used to wear only one blue faded dress, and due to her name also, as everyone was having simple name other than Wanda, as she was immigrant from Poland. She was a different girl. She was a poor girl also. Wanda used to sit with the noisy boys at the end of the row, not because she used to laugh aloud or she was a naughty girl, but because she was a shy and quiet girl. This was the character sketch of Wanda. At last, in that chapter, we came to know that that was a result day, and result was declared in room number 13, their classroom. That class was filled with beautiful drawings, which was made by Wanda Pretanovsky. Wanda always used to say that she was having 100 dresses, in the fact that everyone knows that she was not having those 100 dresses. But on that result day, everyone came to know she was not having those 100 dresses in actual, but she was having those 100 dresses in her drawings, and every drawing was much beautiful. This was our part 1. Let me introduce part 2 to you. First of all, introduction. In the continuation of previous lesson, the 100 dresses 2 reveals why Wanda Petronovsky had not been coming to school. ये चैप्टर रिवील करेगा. In that chapter we came to know that she was not coming to school from last 3 or 4 days, but in this chapter we will came to know that why she was not coming to the school. The Petronovsky family decided to move to a big city where no one would care about their unfamiliar names. Yes, as we know that she was mental harassed by her classmates, so her family decided to move to some other city. On hearing the note, Maddie and Peggy got anxious as they realized that they would never get a chance for making amends for all the teasing they had done. When they heard the note, Miss Mason dictate the note that Wanda would not be anymore in between in among them. Then Peggy and Maggie realized that they had done wrong with Wanda. Both the girls get relieved only on learning that Wanda liked them and had dedicated one of the 100 dresses to each one of them. But both the girls, Peggy and Maddie, were relieved. ये जानकर उन्हें खुशी हुई कि वोंडा उन्हें लाइक करती थी और उसने अपनी 100 ड्रेसेस का एक एक ड्रेस उन दोनों को डेडिकेट किया है. Let us start the summary of the chapter. The lesson begins with all the students of room number 13. Yes, in that chapter, it was the end of the chapter that all the students were in room number 13, and they all were whistling and amazed to see those all the beautiful dresses. Even then, boys were whistling to see all such beautiful dresses. Room number 13, having a look at the wonderful drawing of Wanda Petronovsky. Only then a note is received by Miss Mason from Wanda's father informing that none of his two children will attend the school.
Yes, when they all were in room number 13 and seeing wonderful drawings of Wanda Petronovsky, one note was received by Miss Mason, their teacher. It This note was sent by Wanda's father and informed that none of his two children, दोनों में से उनका कोई भी चाइल्ड विल अटेंड द स्कूल, कोई भी स्कूल अटेंड नहीं करेगा, एज दे आर मूविंग टू अ बिग सिटी, क्योंकि वो एक बिग सिटी में जा रहे हैं, इमिग्रेट हो रहे हैं दोबारा से, वेयर नो वन वुड जज दैम फॉर देयर नेम्स, जो उनको उनके नेम से जज नहीं करेगा, मीन्स जो वहाँ पे उनको टीज नहीं करेगा उनका डिफरेंट नेम होने के कारण। मिस मैसन वॉज लेफ्ट शॉक, मिस मैसन शॉक्ड हो जाती हैं एंड कन्वेड हर डिसअपॉइंटमेंट टू द क्लास, और अपनी उदासी क्लास के साथ शेयर करती है। मैडी वॉज अफेक्टेड बाय द लेटर, जो मैडी है लेटर से अफेक्ट होती है जो वोंडा के फादर ने उन्हें भेजा था। शी इंस्टेंटली डेवलप एन अर्ज टू अपोलोजाइज टू वोंडा, वो इंस्टेंटली क्या कहती है कि वो वोंडा को अपोलोजाइज करना चाहती है। वाइफ मैडी वॉज सेइंग दैट बिकॉज शी नेवर स्टॉप्ड एनी वन टू टीज वोंडा, उसने स्टॉप नहीं किया था किसी को वोंडा को टीज करने से, वो कर सकती थी, वो पैगी को रोक सकती थी, वो अपने क्लासमेट्स को रोक सकती थी, बट शी वॉज अनेबल टू कॉल्ड अप हर करेज, वो अपना करेज को कॉल नहीं कर पाई, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो किसी को रोक सके। पैगी एंड मैडी, द टू बेस्ट फ्रेंड, वी ऑल नो दैट दे वर टू बेस्ट फ्रेंड्स, रश टू बॉगनीज हाइट होपिंग दैट द फैमिली हैजंट मूव येट, वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वोंडा रहा करती थी, इस उम्मीद में कि शायद अभी तक वो ना गए हों। बट टू देयर डिसमे, पर उनकी उदासी थी, देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ इन एंड अराउंड द हाउस, उनके जो घर था वोंडा का उसके आसपास या उसके अंदर लाइफ का कोई निशान नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैडी लॉस्ट हर स्लीप थिंकिंग व्हाट कॉवर्ड शी इज़ हु कुडंट स्टैंड अगेंस्ट द रोंग, मैडी जो है वो अपनी नींद खो देती है ये सोचते हुए कि वो कितनी डरपोक है कि वो जो गलत है उसके आगे नहीं खड़ी हो पाई, वो सच को नहीं संभाल पाई, वो नहीं कह पाई पैगी को और अपने फ्रेंड्स को कि वो वोंडा का मजाक ना उड़ाए। दैट डे शी डिसाइडेड दैट शी विल नेवर लेट एनीवन टीज समवन लाइक दैट अगेन, उस दिन उसने डिसाइड किया, मैडी ने डिसाइड किया कि वो कभी भी किसी को भी टीज करने नहीं देगी। दैट वीकेंड पैगी एंड मैडी डिसाइड टू राइट अ लेटर टू वोंडा, उस वीकेंड पैगी और मैडी ने डिसाइड किया दैट दे विल राइट अ लेटर टू वोंडा दैट वॉज ओरिजिनली meant to be apologetic, but they ended up writing a friendly note asking her how she liked the new place. इन एक्चुअल दे वॉन्ट टू राइट अ अपोलोजाइज लेटर, वो अपोलोजाइज लेटर लिखना चाह रहे थे, सॉरी फील करना चाह रहे थे वोंडा को, बट व्हेन दे रोट दैट लेटर इन द बिगनिंग दे अपोलोजाइज, सॉरी फील किया, बट इन द एंड दे एंडेड विद अ फ्रेंडली नोट, एक फ्रेंडली नोट के साथ उन्होंने एंड किया और पूछा दैट वो शी लाइकिंग द प्लेस और नोट, क्या वो जो उनका नया प्लेस है उसको लाइक कर रही है या नहीं। वीक्स पास्ड बाय एंड देयर वाज नो रिप्लाई अंटिल वन डे नियर क्रिसमस, हफ्ते बीतते गए और वोंडा का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, पर क्रिसमस के पास एक दिन उसका रिप्लाई आया। मिस मैसन अनाउंसेस दैट शी हर्ड फ्रॉम वोंडा, मिस मैसन ने अनाउंस किया क्लास में कि वोंडा से उन्होंने कुछ सुना है। इन दैट लेटर वोंडा रोट शी मिसेस एवरीवन, उस लेटर में वोंडा ने लिखा था कि वो सबको मिस करती है, अपनी क्लास को, पैगी को, मैडी को मिस करती है। अनकन्वेड हर इंटेंशन ऑफ गिफ्टिंग वन ड्रेस ईच टू पैगी एंड मैडी, और कन्वे करने को भी कहा कि जो ड्राइंग्स उसने बनाई थी वो उनमें से एक एक ड्रेस पैगी और मैडी को गिफ्ट करना चाहती है, बिकॉज शी हैज़ अ होल न्यू लॉट ऑफ 100 ड्रेसेस लाइंड अप इन हर न्यू हाउस, क्यों, क्योंकि उसके पास उसके नए घर में 100 ड्रेसेस हैं जैसा कि वो कहा करती थी। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू रिसीव इट, दोनों पैगी और मैडी बहुत खुश थी उसे पाकर। एंड लेटर रियलाइज दैट, बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, वोंडा गिफ्टेड देम ड्राइंग ऑफ दैट 100 ड्रेसेस में एक एक ड्राइंग पैगी और मैडी को गिफ्ट की थी, और बाद में उन दोनों ने रियलाइज़ किया दैट इट वॉज देयर फेसेस शी हैज़ ड्रॉन अलॉन्ग विद द ड्रेस, कि वहाँ पर उन दोनों के फेसेस बने हुए हैं उन ड्रेसेस के साथ। दस
दे बोथ कंक्लूडेड दैट वोंडा डिड लाइक देम। यहाँ पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि वोंडा उनको पसंद करती थी। दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। इन द एंड आई वॉन्ट टू कंक्लूड दैट वी शुड नॉट टीज एनी वन एनीवेयर। हमें कहीं भी कभी भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक अ मेंटल हरासमेंट। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम मेंटल हरास किसी को कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।